Good morning, students. So, in this video, we will learn about the network devices and hardware component which is used in network. So, whenever you establish a network, so you need some devices for connecting computer or a different node together. सो इस वीडियो में हम लोग ये पता करने वाले हैं कि कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं या फिर कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि यूज होती है जब भी हम लोग एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं. ओके. So now let's begin with this video. Network devices and hardware. A computer hardware device which are used to connect computers, printers or any other electronic devices to a computer network are called network devices. These devices transfer data in fast, secure and the correct way with some specific functionality over the same or the different networks. Some devices are installed on the devices like internal modem, NIC card, or RJ45 connector, whereas the some are the part of the network like router, switch, and etc. So hard network devices कौन से होते हैं? जो भी devices काम आते हैं जब हम लोग network establish करते हैं. Okay. There are the two type of devices just like your internal modem card, okay, or NIC stand for the network interface card, okay, and RJ45 connector, okay. ये होते हैं एक जो कि हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप का पार्ट होते हैं, okay, and the some devices are the just established in a network just like your router and switches, okay. So ये router and switches कहाँ काम आएंगे जब आप लोग network establish करते हैं, okay. So आगे देखते हैं इन सब डिवाइसेस के बारे में briefly. So first is network interface card. So this is the top among the other networking devices and mostly used networking devices. This is also known as a network adapter, Ethernet card or LAN card. So it allows our PC to communicate with the other PC. A PC uses parallel data transmission to the transmit data between its internal part, whereas the media that connect this PC with the other devices or PCs uses a serial data transmission. Okay, so a NIC convert a parallel data stream into serial data stream and a vice versa. It convert also serial data stream to parallel data stream also. Okay, so NIC stand for here network interface card, जो कि क्या करता है आपके कंप्यूटर या फिर आपकी जो भी डिवाइस के लैपटॉप बोल दो या फिर आप और भी कोई डिवाइसेस जो कि आप लोग कनेक्ट करना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क के थ्रू, तो आप लोग इसका यूज करेंगे. ओके. क्या होता है ये इस तरीके से जो आपको फिगर दिख रहा है ये इस तरीके से हार्डवेयर होता है, ठीक है. अब ये दो वेरिएंट में होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल. ओके. सो आजकल जो पीसी या फिर आप लोग जो लैपटॉप खरीदते हैं ये इंटरनली सपोर्टेड आता है, ठीक है. ये हार्डवेयर कंपोनेंट ऑटोमेटिकली पहले से ही इंस्टॉल होता है आपके पीसी के अंदर. बट पहले जो कंप्यूटर आते थे उसमें ये एक्सटर्नल भी लगता था, जैसे कि पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है तो अगर आपको नेटवर्क से कनेक्ट है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से एक एनआईसी कार्ड लगाना पड़ता था और फिर आप लोग कनेक्ट कर पाते हो आपके डिवाइस को विद अदर नेटवर्क्स. ओके. ये इसका पोर्ट होता है. विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्ट यू कैन कनेक्ट विद वायर और दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन द वायरलेस कनेक्शन. ओके. सो विद द हेल्प ऑफ वायर और वायरलेस कनेक्शन यू कैन कनेक्ट योर पीसी विद द हेल्प ऑफ दिस network interface card. Okay, so ये था आपका network interface card which is used for the connecting your devices with other networks. Now next it's a Wi-Fi card. Okay, so Wi-Fi card में ये Wi-Fi जो आप लोग यूज करते हो फोन में, ठीक है, सो इसके लिए भी क्या होता है, एक अलग से एक डिवाइस होता है, हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो हमारे Wi-Fi फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है. ओके. तो किसी के अगर पास में घर पे डेस्कटॉप है, ठीक है, और उसमें वाईफाई कनेक्शन नहीं है बट लैपटॉप में अगर वाईफाई कनेक्शन है तो इट इज नॉट ओनली सॉफ्टवेयर कंपोनेंट. ओके. सो इट इज नॉट ओनली सॉफ्टवेयर, इट इज आल्सो यू नीड टू आल्सो ए हार्डवेयर कंपोनेंट फॉर यूज दिस वाईफाई फैसिलिटी. ओके. सो वाईफाई हियर स्टैंड फॉर द वायरलेस फिडिलिटी. ओके, ये इसका पूरा नाम होता है. ओके. ये इस तरीके से एक डिवाइस होता है जो कि आपके कंप्यूटर या फिर आपके कोई भी डिवाइसेस के अंदर छोटा सा कंपोनेंट चिप होती है जो आपके इंस्टॉल होती है, ठीक है. विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर chip or that particular device you can use the wireless fidelity service. Okay. क्या होता है इसका मेन काम, इसका काम होता है मेन आपका कनेक्शन बनाना और आपके डेटा को ट्रांसफर करना.
ओके, सो डेटा ट्रांसफर करता है ये एक नोड से दूसरे नोड के बीच में। तो देखते हैं इसके बारे में क्या दे रखा है इसके अंदर। So a Wi-Fi card or a small and portable card that allow your computer to connect the internet through the wireless network. Okay, तो ध्यान से देखिएगा, it allow your computer to connect the internet थ्रू द वायरलेस कनेक्शन। सो वाईफाई क्या करता है, आपका वायरलेस कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है टू अलाउ यू टू यूज द इंटरनेट। ओके, सो कनेक्शन बनेगा, फिर उसके बाद में आप लोग इंटरनेट कनेक्शन यूज कर पाओगे। ठीक है, और अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन यूज नहीं करना है, केवल कनेक्टिविटी करनी है, तो केवल कनेक्टिविटी भी आप विद द हेल्प ऑफ वाईफाई कार्ड कर सकते हैं। ओके, एक छोटी सी चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आप लोग सोचते हो कि वाईफाई ऑन करते ही या फिर वाईफाई कनेक्ट करते ही आप लोग इंटरनेट चला लेंगे, सो इट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, ये गलत है। यहाँ पे आपको ये जानना होगा कि वाईफाई केवल आपको क्या करता है, एक कनेक्शन स्टेब्लिश करने का काम करता है। ओके, सो एक कनेक्शन आप लोग स्टेब्लिश कर पाएंगे वाईफाई के थ्रू, बट उस कनेक्शन में अगर इंटरनेट फैसिलिटी है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग केवल एक कनेक्शन बना पाएंगे, इंटरनेट यूज नहीं कर पाएंगे। ये सेम एज इट इज ऐसा ही है कि आप लोग आपके फोन का हॉटस्पॉट चालू करो और डेटा कनेक्शन ऑफ कर दो। ओके, सो आपके हॉटस्पॉट से अगर कोई दूसरा पर्सन आपके हॉटस्पॉट को कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ वाईफाई कनेक्शन, ठीक है, तो वो आपका कनेक्शन से आपको कनेक्ट तो कर लेगा आपके फोन को, बट वो आपके डेटा को नहीं यूज कर पाएगा जब तक कि आप डेटा कनेक्शन ऑन नहीं करोगे। ओके, तो वहां पे लिखा हुआ आएगा इंटरनेट कनेक्शन, सॉरी वाईफाई कनेक्टेड बट नो इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, सो वेन एवर यू ऑन द योर डेटा कनेक्शन, सो दैट टाइम यू दैट पर्सन कैन यूज योर इंटरनेट फैसिलिटी। ओके, सो ये डिफरेंस होता है वाईफाई और इंटरनेट कनेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये वैसे तो सभी को पता होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो हमको नहीं पता होती। ये बेसिक सी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। सो नाउ नेक्स्ट है द वाईफाई ट्रांसमिशन इज थ्रू द रेडियो वेव्स। These signal are picked up by Wi-Fi receiver such as a computer on cell phones equipped with the Wi-Fi card. Okay, so the devices need to be within the range of a Wi-Fi network to receive the signal and produce a wireless internet connection. Once a connection is established between the user and the network, the user is promoted within the login screen and the password for the establishing a secure connection. Okay, so जब भी आप लोग वाईफाई यूज कर रहे हो, तो आप लोग जैसे ही वाईफाई कनेक्ट करोगे तो आप लोग एबल हो जाओगे उस पर्टिकुलर नेटवर्क को यूज करने से, जैसे ही आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। ओके, सो ए वाईफाई कार्ड कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल, जैसे मैंने आपको बताया था, इट कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। If a Wi-Fi card is not installed inside your computer, you may purchase an external USB antenna attachment and connect to your devices. Many computer and mobile devices are nowadays equipped with the wireless networking capability and do not require a Wi-Fi card. Okay, so Wi-Fi card also is present in two variant. Okay, so it may be installed by default in your PC, or you need to be purchased as an external वाईफाई कार्ड। ओके, सो ये जस्ट एक, अगर आपके डेस्कटॉप में अगर वाईफाई कनेक्शन नहीं है और आपको डेस्कटॉप में वाईफाई कनेक्शन चाहिए, ठीक है, बट आपके हार्डवेयर नहीं लगा हुआ है, तो आप लोग वाईफाई फैसिलिटी यूज नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, यू जस्ट नीड टू परचेज ए वाईफाई कार्ड। ओके, एक छोटा सा कार्ड आता है जस्ट लाइक योर पेन ड्राइव। ठीक है, सो पेन ड्राइव के जैसा आता है, उसमें आप क्या करेंगे, प्लग इन करेंगे, जैसे आप लोग जहाँ प्लग इन करते हैं यूएसबी पोर्ट के जैसा आता है। तो यूएसबी पोर्ट आप प्लग इन करो और प्लग इन करने के बाद में आप एक छोटा सा जो उसका ड्राइवर होता है वो इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एंड देन यू कैन यूज योर वाईफाई फैसिलिटी इन योर डेस्कटॉप आल्सो। ओके, सो एक यहाँ पे लाइन थी कि लॉगिन स्क्रीन एंड पासवर्ड। सो ये सेम वैसा ही है कि कई वाईफाई कनेक्शंस के अंदर क्या होती है, सिक्योरिटी लगाई हुई होती है। तो क्या होता है कि उसके अंदर आप लोग जैसे ही वाईफाई कनेक्शन आप लॉगिन सॉरी कनेक्ट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर वाईफाई की जो भी फैसिलिटीज होती है उसको यूज करने के लिए आपको उसके लिए आपका यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, सो यूजर आईडी अगर पासवर्ड आ रहा आप लोग कनेक्ट से इस कनेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज नाउ यू आर ऑथेंटिकेट टू यूज दैट सर्विस विद द हेल्प ऑफ दैट वाईफाई। ओके, सो ये होता है, ये सेम इज ऐसा ही है जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन या फिर कई ऐसे पब्लिक प्लेस में वायरलेस फैसिलिटी दी जाती है बाय द गवर्नमेंट। ओके, और फिर आप क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर वाईफाई को कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद में आप जो भी आप ब्राउजर खोलोगे या फिर कोई भी आप एप्लीकेशन खोलोगे, तो वो डिफॉल्टली आपको कहाँ लेके जाएगा, ब्राउजर पे लेके जाएगा, और एक
उसका एक होम पेज खोल देगा। उस होम पेज पे आपको वो नंबर इंसर्ट करवाएगा या फिर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा। बट मैक्सिमम जगह क्या होता है कि आपका मोबाइल नंबर आपको इंसर्ट करवाता है, फिर एक ओटीपी आएगा और ओटीपी से आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको कनेक्शन बना पाते हैं। सो दिस इज हाउ दैट ए नेटवर्क कैन एस्टेब्लिश ए कनेक्शन विद अदर मेंबर्स। ओके, सो इससे क्या है, वो कनेक्शन सिक्योर हो जाता है। ओके, सो ये था आपका वाईफाई कार्ड और वाईफाई। नाउ नेक्स्ट इज अ हब। सो हब is a most basic networking device that connect multiple computer or other network devices together. Okay, unlike a network switch or a router. So a network hub has no routing table or intelligence on where to the send information or broadcast all the network data across each connection. Okay, so what is the mean of hub and what hub do? So it is a device which connect the different network, okay, or sorry, a multiple computer within a single network. Okay, so with the help of this device you can connect multiple devices or computer. Okay, so इन ports की help से आप लोग क्या कर सकते हैं, एक network में multiple connection बना सकते हैं। ठीक है, so ये है आपका hub और उसकी working। Now it's time for the switch. Okay, so a network switch also connect computer to each other like a hub, where the switch differ from a hub is in the way it handle packets of data. When a switch receive a packet of data, it determines that a what computer or device the packet is intended for the and send it to the computer only. Okay, so it does not broadcast the packet to the all computer as the hub does, which mean the bandwidth is not shared and make the network much more efficient. For this reason alone, switches are usually preferred over a hub. Okay, that's switches are the intelligence hub. Okay, so here what do you understand about the switch? So switch are intelligent hub। क्यों होता है ये इंटेलिजेंट? क्योंकि इसको पता होता है कि ये पर्टिकुलर जो पैकेट ऑफ डेटा आया है वो किस कंप्यूटर से आया है और किस कंप्यूटर के लिए आया है। ओके, सो नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई इंफॉर्मेशन या भी कोई भी हम लोग डेटा सेंड करते हैं तो ओवर नेटवर्क पूरे हम सबको सेंड नहीं करते, हम किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ कंप्यूटर या फिर पर्टिकुलर कंप्यूटर को हम लोग सेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्विच क्या करता है, एक इंटेलिजेंट हब का काम करता है जो कनेक्ट करते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स को टू द नेटवर्क। और इस स्विच को पता होता है कि ये जो भी मैसेज आया है वो किस कंप्यूटर से आया है और किस कंप्यूटर के लिए आया है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इंटेलिजेंट हब। बट अगर हम बात करेंगे इस हब की, सो हब में क्या होता है कि देयर इज अ नो राउटिंग टेबल और इंटेलिजेंस वेयर ऑल द सेंड इंफॉर्मेशन इज ब्रॉडकास्ट टू द ऑल नेटवर्क डेटा अक्रॉस ईच कनेक्शन। ठीक है, तो ये हब में जब हम लोग कनेक्ट करते हैं किसी एक नेटवर्क को, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप लोग सेंड करोगे कोई मैसेज या फिर कोई भी पैकेट ऑफ डेटा, तो ये क्या करता है, पूरे नेटवर्क पे सेंड कर देता है। ठीक है, तो और जिस भी कंप्यूटर को ये चाहिए होता है तो वो उसको पर्टिकुलर उसको रिसीव करता है ऑथेंटिकेट करके। ठीक है, बट जो मैसेज होता है वो ऑल ओवर द नेटवर्क स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, बट जब हम लोग बात करते हैं स्विच की, तो स्विच क्या करता है, उसको पता होता है कि ये पैकेट कहाँ से आया है और किस कंप्यूटर के लिए आया है। ओके, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ए इंटेलिजेंट हब। ओके, सो हियर व्हाट अ स्विच डू। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज router। Okay, so this is the bridge, but we are skipping this bridge because it is not mentioned in your syllabus। Okay, so now router। Okay, so आप लोगों ने ये डिवाइस देखा होगा किसी पब्लिक प्लेस में या फिर जब भी आप लोग वाईफाई यूज करते हो किसी पब्लिक प्लेस में, तो इस टाइप के डिवाइसेस आपको देखने को मिलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं राउटर। ठीक है, ये क्या काम करता है, क्या इसकी वर्किंग होती है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो द राउटर at least the common home network devices that we usually call a route. Okay, so is the piece of network hardware that allow you to communicate between your local home network like your personal computer or other connected device and the internet. Okay, so a router is the first line of security from intrusion into a network, enabling the highest level of security on the router turn onto the thing like the firewall and
is the best way to keep your computer system and the information safe from the attack. Okay, so ये क्या करता है router? It is also a hardware device which is used to in a network. Okay, ये क्या करता है? आपके सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है. आप एक तरीके से सिग्नल रिसीव करेगा, वापस ट्रांसमिट कर देगा, उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा के भी काम करता है, ये भी काम करता है, और ये आपके नेटवर्किंग को स्प्रेड करने का काम करता है. ठीक है, तो ये राउटर इज द फर्स्ट लाइन सिक्योरिटी, और ये आपकी क्या करता है, जो भी आपकी नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, ठीक है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करता है. ठीक है, कि ये पर्टिकुलर डिवाइस में पर्टिकुलर नेटवर्क में एक्सेस होने के लिए कैपेबल है या नहीं है. ठीक है, तो सिक्योरिटी रीजन से ये एक मेन थिंग है. ठीक है, और क्या करता है, सेकंड काम क्या होता है इसका, नेटवर्क को स्प्रेड करना. ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं गेटवे. So what is the mean of gateway? So a computer networking and a telecommunication, a gateway is a component that is part of two network which use different protocol. Okay, so gateway क्या होता है कि हम लोग जब भी दो नेटवर्क्स को यूज करते हैं, तो कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम लोग एक डिवाइस का यूज लेते हैं जिसका नाम है गेटवे. ओके, सो हियर यू कैन सी द गेटवे. ठीक है, द डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट द टू नेटवर्क. अब ये टू नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए क्यों गेटवे हम लोग काम में ले रहे हैं, क्योंकि अलग अलग नेटवर्क है, तो अलग अलग नेटवर्क के जो प्रोटोकॉल्स भी हो सकते हैं वो हो सकता है अलग अलग हो. ठीक है, तो डिफरेंट प्रोटोकॉल को यूज करते हुए हम लोग दो नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हैं एक साथ. ठीक है, तो वहां पे हम लोग गेटवे का यूज करते हैं. ओके, सो द गेटवे इज ए कंपोनेंट दैट is part of two network which use different protocol. Okay, the gateway will translate one protocol into another. Okay, a router is a special case of gateway. A gateway is a hardware device that act as a gate between two network. Okay, so it is a act as a gate between two network. तो जब भी दो नेटवर्क की बात करेंगे और कनेक्ट करने के लिए, तो इस नेटवर्क से अगर हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन इस नेटवर्क में अगर सेंड करेंगे, तो एक बीच में गेटवे होता है. ठीक है, सो इस गेटवे के मीडियम से हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इधर सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं. ओके, तो ये क्या करता है, दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के काम आता है. So it may be a router, firewall, server, or other devices that enable traffic to flow in and out of the network. Okay, so ये क्या करता है, आपके enable करता है ट्रैफिक के फ्लो को, ठीक है, इंफॉर्मेशन इन और आउट करने के लिए. जैसे कि इफ यू वांट टू रिसीव दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर नेटवर्क, सो इट कैन रिसीव और ट्रांसमिट आल्सो. ओके, सो दिस इज द बेसिक वर्किंग और मीनिंग ऑफ द गेटवे. नेक्स्ट है RJ45 connector. Okay, so this is a connector which is used to connect the cable for the network establishing. Okay, so RJ45 is a type of connector commonly used for the Ethernet networking. It is look like a similar telephone jack, but it is a slightly wider. Okay, Ethernet cable have an RJ45 connector on the each end. Ethernet cable are also sometimes called RJ45 cable. Okay, so RJ45 connector होता क्या है, तो it just look like your telephone connector. Okay, तो अगर आप लोगों ने ये कनेक्शन देखा होगा, ये ओके, सो अगर आप इस पर्टिकुलर इस जैक को अगर आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, सो इस जैक पे जो हम लोग या फिर आपके बेसिक टेलीफोन जो लैंडलाइन है उसके अंदर अगर वायर्ड कनेक्शन है, तो आप लोग उसके एक पोर्ट होता है, ठीक है, या फिर आप लोग ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दैट वायर, ठीक है, तो उसमें भी एक कनेक्टर होता है जो इस तरीके से स्लॉट के अंदर उसमें प्लग इन होता है. ठीक है, तो सेम वो जो स्लॉट आप इसमें प्लग इन कर रहे हो, सेम वैसा ही दिखने में RJ45 कनेक्टर होता है. ठीक है, बट इट इज स्लाइटली वाइडर देन दैट कनेक्टर. ओके, क्या होता है, बट उसमें क्या होता है, आपके 4 वायर्स होते हैं और 4 पिंस होती है. ठीक है, इसमें आपके 8 वायर्स होते हैं. ठीक है, तो इसके लिए जो केबल यूज होती है उसके अंदर 8 वायर्स होंगे, और उस that's why we can call it as that's why we can call that cable as a RJ45 cable. Okay, so it is just a connector which is used for the connect 2 or more devices with the help of wire. Okay, so इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, बट ये जस्ट a connector है जो कि हम लोग यूज करते हैं to establish a network with the help of wire. Now next है modem. Okay, so modem आप लोगों ने पहले भी कई बार नाम सुना होगा. ठीक है, सो मोडेम स्टैंड मैं आपको बता दूं बेसिक मीनिंग इसका होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर. तो पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या लिख रखा है. ओके, सो मोडेम इज अ शॉर्ट फॉर द
modulator and demodulator. It is the hardware component that allow a computer or another device such as a router or switch to connect the internet. It convert or modulate an analog signal form to a telephone cable or a cable wire to digital data. Okay, that a computer can recognize. Okay, similarly, it convert a digital data form a computer or another device into the an analog signal. Okay, that can send over the distant telephone line. ठीक है, तो करता क्या है ये, इसका जो मॉडेम स्टैंड फॉर द modulator and demodulator. So MO stand for the modulation, okay, and the DEM stand for the demodulator. So that's why we can call it a modem. Okay, अब मॉड्यूलेटर और डीमोडुलेटर क्या काम होता है मैं आपको बता देता हूँ. तो मॉड्यूलेटर का मतलब होता है मॉड्यूलेशन करना. मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देख सुनिएगा कि जब भी हम लोग कोई सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तो सिग्नल की जो भी हम लोग ट्रांसमिट करते हैं तो वो सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या होती है, वीक होती है. बट हम लोगों को वो सिग्नल ट्रांसमिट करना है तो वो पर्टिकुलर अगर वीक सिग्नल है तो वो पर्टिकुलर जिस भी हम लोग एंड पे हम लोग सिग्नल ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, जहां भेजना चाह रहे हैं, उसकी जो डिस्टेंस है वो सपोज करो ज्यादा है, ठीक है, तो वहां तक वो सिग्नल कैसे पहुंचेगा, तो वहां तक वो सिग्नल को हम लोग ये क्या करता है, नेटवर्क क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ दैट मॉडेम क्या करता है, आपके जो सिग्नल जो आप लोग ट्रांसमिट करना है उस सिग्नल को क्या करेगा, आपके एक कैरियर करके एक सिग्नल होता है जिसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, हाई होती है. तो आपके वीक सिग्नल को क्या करता है, आपके वीक सिग्नल को स्ट्रेंथ को क्या करता है, हाई सिग्नल पे ओवर उसको कैरियर कर देता है. ठीक है, तो आपका एक हाई सिग्नल क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल क्या करता है, आपके जो मेन सिग्नल है उसको कैरी कर लेता है और फिर वो दोनों क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन होके क्या होता है, उसका ट्रांसमिशन हो जाता है. ठीक है, और एट द एंड ऑफ रिसीवर साइड, ठीक है, तो वहां क्या होता है, आपको वो जो सिग्नल मिलेगा वो क्या मिलेगा, मिक्स सिग्नल मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या क्या है, आपका एक तो ओरिजिनल सिग्नल है और दूसरा क्या है, आपका उसका कैरियर सिग्नल है. ठीक है, सो जहां पे भी आप रिसीव करेंगे वहां पे वापस मॉडेम काम आता है. तो वहां रिसीव करते वक्त क्या होता है, आपका डीमोडुलेटर एज करेगा वो, तो वो क्या करेगा, कैरियर सिग्नल को उसमें से हटा देगा और ओरिजिनल सिग्नल को क्या करेगा, रिसीव कर लेगा. ठीक है, तो ये होता है वर्किंग मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का. अब नाम जैसे इसका मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर है, ठीक है, तो वैसे ही ये दो डिवाइसेस नहीं होते, सेम डिवाइस होता है एक ही जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडेम. सो इट कैन वर्क एज अ मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर आल्सो. ठीक है, तो whenever we send information so it work as a modem, modulator, or whenever we receive a signal so it work as a demodulator. Okay, so this is a hardware component, okay, that allow your computer or another devices such as router switches to connect the internet. Okay, so जब भी हम लोग इंटरनेट कनेक्शन यूज करते हैं तभी हम लोग मॉडेम को यूज करते हैं. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक ग्राफिक और व्यू ऑफ मॉडेम. ओके, एक मॉडेम आपका पहले अलग आता था जो आप लोग प्लग इन करते थे कंप्यूटर या लैपटॉप में, जिसके अंदर आप लोग सिम इंसर्ट करके आप लोग इंटरनेट कनेक्शन यूज करते हो. ठीक है, सो वो भी क्या है, एक मॉडेम है. ठीक है, सो ये थी बेसिक जानकारी आपके मॉडेम के बारे में. सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही. हियर यू कैन सी the unit third of introduction to the computer network and how many topic you have covered. Okay, so in previous video you have learned about the network and network types. Okay, LAN, MAN, WAN, and you also known about that topologies. Okay, just like your star, bus and tree and mesh topology. और इस वीडियो में आप लोगों ने देखा नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में. ओके, सो नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में जिसमें कौन कौन सी डिवाइसेस आपने देखी, मॉडेम, हब, स्विचेस, राउटर एंड गेटवे. ओके, सो वन थिंग इज रिमेनिंग हियर, रिपीटर. ओके, सो आई एक्सप्लेन द रिपीटर, व्हाट इज द मीन ऑफ रिपीटर. सो रिपीटर क्या होता है, एक अलग हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि क्या करता है, आपके सिग्नल को क्या करता है, रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है. ठीक है, अब रिपीटर है तो जस्ट लाइक इट्स नेम, इट रिसीव सिग्नल और फिर क्या करता है, उसको एम्पलीफाई करता है. ठीक है, एम्पलीफाई करने का मतलब जब भी ये सिग्नल को रिसीव करेगा तो सिग्नल क्या हो जाते हैं, ट्रांसमिट होते होते क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं. तो वो वीक सिग्नल को रिसीव करेगा, फिर उसको बूस्ट करेगा और वापस ट्रांसमिट कर देगा. ठीक है, तो वापस ट्रांसमिट करने के पर क्या होगा कि जब भी ट्रांसमिट करेगा तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा ताकि जो सिग्नल है वो और डिस्टेंस को कवर कर पाए. ठीक है, सो दिस इज द मीन और दिस इज द वर्क ऑफ रिपीटर. So I think enough for the today in this video. Okay, so in next video we will learn about the remaining part of this unit,
Okay, so this section we will cover in the next section. Okay, so till then, watch this video again, and if you have any doubt and any query, so you can message me. Okay, till then, stay happy and stay safe, and goodbye.